Good morning, guys. Second part of first chapter. We have already, I have already taught you that statistics is a plural noun. Now, today I will discuss about why statistics is a singular noun. Statistics is a singular noun because the techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of quantitative data. So, it is called singular noun. Now, what are the stages of statistical study? किसी भी statistical study को करने के लिए हमें ये सारी 5 स्टेजेस पार करनी होती है, उसके बाद ही we can get or we can get a conclusion. First, collection of data. Second, after collection of data, organization of data, यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में we will organize that data. Then presentation of data. When we organize the data, we will make this data in the form of presentation. It means how we can present the data so every person can understand. Next, after presentation, analysis of data. Analysis of data by using different methods. I will teach you in next chapters about the analysis of data. We can use mean, median, mode, standard deviation, correlation, index number, etc. And last stage will be interpretation of data. Interpretation means what are the result of the data. It is obviously at the first stage we collect data, in second organize the data in some systematic order, third we present the data in the form of graph, diagram, tables, fourth we analyze the data in the term of average or percentage or mean, median, as I told you, and finally interpret the data to find certain conclusion. Now, what are the statistical tools? Each stage of the statistical study involves the use of certain standard technique of method. यानी जो हमने 5 स्टेजेज मैंने आपको अभी बताई, उन सभी 5 स्टेज में डाटा को कलेक्ट करने से लेकर और इंटरप्रिटेशन तक देयर आर वेरियस टूल्स. We can use these tools or techniques. What are these tools? As per given the table, you can see stage first collection of data, census or sampling technique. सेंसस और सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब, यदि अगर एरिया छोटा है तो हम ईच एंड एवरी यूनिट की इंफॉर्मेशन ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंसस टेक्निक. सेंसस टेक्निक का मतलब होता है कि हम डाटा सभी की, जो भी उससे रिलेटेड व्यक्ति है, सभी रिलेटेड व्यक्तियों का डाटा कलेक्ट कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड सैंपल टेक्निक. दैट इज कॉल्ड सेंसस टेक्निक.
What is sample technique? If the area is very vast, बहुत बड़ा एरिया हो, तो हम उस बड़े एरिया में से कुछ पॉकेट्स में से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि सभी सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सैंपल वी कैन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा. तो फर्स्ट स्टेज we can use census or sampling techniques. In second stage, organization of data, array of data and tally bar, यानी एक एक डाटा को देख सकते हैं टैली बार बनाकर और उसके अकॉर्डिंग डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप ग्राफिकल मोड में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और यू कैन ग्राफिकल एंड डायग्राम मोड में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. जो आपको सूटेबल हो आपके ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस स्टैटिस्टिकल टूल को यूज कर सकते हैं. देन एनालिसिस ऑफ डाटा. एनालिसिस ऑफ डाटा का मैंने आपको बताया परसेंटेज है, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन. किसी भी टूल को आप यूज करके डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं. एंड लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, कितनी डिग्री का है, उसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं. तो दीज आर द टूल्स वी कैन यूज फॉर स्टैटिस्टिकल statistics. Now I will tell you about the scope of statistics. What are the scope of statistics? It includes nature of statistics, subject matter of statistics, and limitation of statistics. First, nature of statistics. What is the nature of statistics? Some economist or statistician tells that statistics are science, and some statistician or economist tells that statistics is an art. Both have some favorable arguments, but I can say, yeah, you can write statistics as a science. Why statistics as a science? Statistics studies numerical data in a scientific or systematic manner, because when we collect all the information in scientific and systematic manner and only numerical data. So some statistician called it a science. Why some statistician called it art? Because statistics relates to the quantitative data of real life problems. By using statistical data, we are able to analyze and understand real life problem much better than otherwise. For example, the problem on employment in India, how we can calculate how much unemployed in which sector, in which age group. So these statisticians called it's an art. The result, what will be the result? We can say in conclusion that statistics is art as well as science. It's a two part of a coin. Now next, what is the subject matter of statistics? Subject matter
of statistics includes two components. First, descriptive statistics, and second, inferential statistics. What is descriptive statistics? Descriptive statistics refers to those methods which are used for the collection, presentation, as well as analysis of data. These methods related to such estimations as measure of central tendency. Measure of central tendency includes average, mean, median, mode. Measurement of dispersion, mean deviation, standard deviation, and measurement of correlation. It means descriptive statistics में हम डाटा का एनालिसिस इन डिफरेंट टूल्स के माध्यम से या मेथड्स के माध्यम से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, descriptive statistics is used when you estimate average height of the secondary students in your school. Likewise, descriptive statistics used when you find the marks in science and mathematics of the students in all the classes are intimately related to each other. कहने का मतलब मेरा यह है कि descriptive statistics में हम डाटा को जो कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, उसके लिए वी यूज एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स it refers to all such method by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis given a sample. देखिए, एक चीज ध्यान और रखें, descriptive statistics में हम जितने भी हमारे सैंपल वाले व्यक्ति हैं, जिनका हमको इंफॉर्मेशन लेने वाले व्यक्ति हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. यानी वी यूज सेंसस मेथड इन डिस्क्रिप्टिव मेथड. बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम उस सेंसस जितना भी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का, और उसका जो भी एरिया है, उस सेंसस में से कुछ सैंपल लेकर उनके बेस पर हम लोग डिसीजन निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम पूरे यूनिवर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और इन मेथड से हम उसका एनालिसिस और रिजल्ट निकालते हैं. इन्फ्रेंसिव स्टैटिस्टिक्स में उस पूरी यूनिवर्स में से कुछ सैंपल लेकर ऊपर जो मेथड मैंने बताया फर्स्ट मेथड में, उन मेथड से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं और उसको पूरे के पूरे यूनिवर्स पर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं. एंड थर्ड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. What are the limitations of statistics? First, study of numerical facts only. Statistics studies only such facts as can be expressed in numerical term. यानी जो फिगर्स में है, अगर कोई आपके पास डाटा है तभी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं. ये क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, इसके बारे में कोई भी बात नहीं बताती. सेकंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली. स्टैटिस्टिक्स किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई भी चीज नहीं बताती है. ये सिर्फ एग्रीगेट यानी मोर देन वन पर्सन. जब तक कोई आप डेटा कम से कम 2 या उससे अधिक व्यक्तियों का कलेक्ट नहीं करें, तब तक ये स्टैटिस्टिक्स कोई मतलब, बिना स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं रहता है. अगर मैं सिंपली फॉर एग्जांपल बताऊं
your class teacher earned 50,000 per month, but as this fact related to an individual, it is not to be deemed as subject matter of statistics. But statistics, if we study income of school teachers across all part of the country, then it is called statistics. So we can say that statistics study only aggregate, not individually. Third, homogeneity of data as essential requirement. To compare data, it is essential that statistics are uniform in quality. Data of diverse qualities and kinds cannot be compared. यानी स्टैटिस्टिक्स में जो भी आप डेटा हैं वो होमोजीनियसली होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए. होमोजीनियस का मतलब अगर 2 साल के डेटा हैं तो 2 साल के डेटा में उनकी क्वांटिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका ऑब्जेक्ट रिमेन सेम. यदि ये होमोजेनिटी नहीं रहेगी तो ऐसी कंडीशन में वी कैन नॉट कंपेयर, और अगर बिना उसके कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट विल बी डिफर. तो होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. मैंने आपको एक इससे पहले वाले में बताया था, फर्स्ट जो पार्ट में मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट एग्जैक्ट ना होकर ट्रू और वो एवरेज बेस पर होते हैं. मोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एन एवरेजेस. They express only the broad tendencies. Unlike the law of natural science, statistical observation are not error free. यानी साइंस की तरह ये बिल्कुल एरर फ्री नहीं है कि 3 multiplied by 2 is equal to 6. It is all the results are true but on average basis. Next, without reference, result may prove be wrong. In order to understand the conclusion preciously, it is necessary that the circumstances and condition under which these conclusions have been drawn are also be studied. Otherwise, they may prove to be wrong. कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन रिमेन सेम होनी चाहिए. अदरवाइज द रिजल्ट बिकम रॉन्ग. इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इन ए बिजनेस ऑफ क्लॉथ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 3 ईयर में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रेस्पेक्टिवली. ऑन अदर हैंड, इन द पेपर बिजनेस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेम 3 ईयर में 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली. Thus, the average profit of both business comes to 2 lakh per annum. It may be lead to conclusion that both the business have similar economic status, but it may not be true. We may actually find that whereas cloth business is making progress and paper business is on decline. कहने का मतलब ये है कि यदि क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं हम तो 3 साल में हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख. यदि इसका एवरेज निकालेंगे तो तीनों का जोड़ 6 लाख इक्वल्स टू 3 लाख. और यदि पेपर बिजनेस कर रहे हैं उसमें उसका अर्निंग 3, 2 और 1, इसका भी एवरेज होगा 3 लाख. बट अगर हम इसको देखें डीपली तो क्लॉथ का बिजनेस ग्रो कर रहा है जबकि पेपर का बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है. नेक्स्ट, कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स. आप लोग अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो यू कैन यूज द डेटा, यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा, बट हु डोंट नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स he cannot use the data. So the statistical data can be used only by the expert.
Last one, prone to misuse. Misuse of statistics is very common. Statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. It is usually said statistics are like day by statistics are like clay by which you can make a good or a devil as you please. The misuse of statistics is indeed its greatest limitation. आपकी बहुत सारी चीज जो ही आपने पब्लिश कर दी तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म हैं उनके द्वारा उसका मिसयूज किया जा सकता है. Now next topic is what is the function or importance of statistics. What are the functions and importance of statistics? First, quantitative expression of economic problem. Consider an economic problem, be it the problem of unemployment, the problem of price rise, or the problem of sinking export. The first task of economist is to understand its magnitude through the quantitative expression. For example, if it is the problem of unemployment, we may its quantitative expression static that 20% of India working population is unemployed, or that between the year of 2005 to 2019 the percentage of unemployment working population intended to increase from 18% to 9.4%. So it means क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम बता सकते हैं. सेकंड, इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन. स्टैटिस्टिक्स के द्वारा वी कैन कंपेयर इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन. इंटरसेक्टोरल यानी जो सेक्टर आपका बिजनेस का है उस बिजनेस सेक्टर को आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसी सेक्टर में आपकी कंपनी या आपकी फर्म कहाँ खड़ी हुई है. मान लीजिए आपकी शुगर मिल है और पूरी कंट्री में 50 शुगर मिल है, तो इंटरसेक्टोरल आप देख सकते हैं कि 50 शुगर मिल में मेरी शुगर मिल कहाँ है. और इन टेम्पोरल टोटल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपकी ग्रोथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड. तो वी कैन कंपेयर थ्रू स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल. नेक्स्ट, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Economists try to find out cause and effect relation between different set of data. This enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies. यानी स्टैटिस्टिक्स से जो प्रॉब्लम है उसके हम कॉज को भी देख लेते हैं और जो कॉज निकल के आता है उसको दूर करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है हम ये इकोनॉमिस्ट उस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बता सकते हैं. थ्रू देयर स्टैटिस्टिक्स स्टडी इफ द economists come to know that it is because of the decline of demand that investment in economy has tended to shrink. कि एक ये भी हो सकता है कि मंदी यदि हो जाती है तो हम इकोनॉमिस्ट इस बात से पता लगा लेते हैं कि डिमांड कितनी कम है या इन्वेस्टमेंट कितना कम है. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल्स. What is economic theory? It is an established statistical relation between different sets of statistical data offering conclusion of economic significance. The well-known inverse relation between price of a commodity
and demand is an established statistical relation, therefore it is a part of economic theory. यानी स्टैटिस्टिक्स के बेस पर एक थ्योरी हमने जनरेट कर दी कि डिमांड और प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर डिमांड का पढ़ाऊंगा, तब आई विल टेल यू कि this is a theory or economic model that if price increase the demand will decrease, if price decrease the demand will increase. It means यदि बाजार में किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी चीज की प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी इस तरह की थ्योरी हम बना लेते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम आगे आने वाले साल कैसे रहेंगे बिजनेस के लिए, हमारी खुद के बिजनेस के लिए, एंटायर इंडस्ट्री के लिए, एंटायर कंट्री के लिए, ये भी हम लोग इस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। How does the finance minister decide to increase or decrease taxation as a source of government revenue? अगर फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट बनाती है तो उसको कैसे पता चलता है कि टैक्स को हमें बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? Obviously through statistical studies. It is through statistical investigation that is finance minister get a feedback on tax paying capacity of the people and revenue need of the government. यानी फाइनेंस मिनिस्टर पता कर लेती है इससे कि कितना व्यक्ति टैक्स पे कर सकता है और कितना गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, limitation, economic equilibrium. What is equilibrium? It is a state of balance for the producer or consumer where the producer finds his profit are maximum or where consumer finds his satisfaction is maximum. It is through the use of a statistics method that the economists have involved some eco fundamentals telling us how profit of the producer is maximized or how consumer get maximum satisfaction. मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी। इक्विलिब्रियम मीन्स ये होता है कि अगर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा, वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपके पास 50 रुपए हैं, आप ऐसी कौन सी चीज खरीदें जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए। दीज आर द लिमिटेशन एंड अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स पर विश्वास नहीं करते। व्हाई? दे थॉट दैट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स इज ए रेनबो ऑफ लाइज, कि जैसे बारिश में इंद्रधनुष बन जाता है और वो सही स्थिति नहीं बताता है, वैसे स्टैटिस्टिक्स भी इसको सही स्थिति नहीं बताता है। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। बहुत सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की फॉल्स होती हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। स्टैटिस्टिक्स से आप किसी भी चीज को प्रूव कर सकते हैं, सही या गलत। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। और इसके विपरीत
यदि आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इससे कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। और लास्ट वन, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक गॉड और डेविल एज यू प्लीज। यानी स्टैटिस्टिक्स एक इस तरह की मिट्टी है जिससे आप चाहें तो उस मिट्टी से भगवान बना सकते हैं, और चाहें तो आप उससे राक्षस बना सकते हैं। इन कारणों से लोग बाग स्टैटिस्टिक्स से डिस्ट्रस्ट करते हैं। अब कहीं इसके रीजन क्यों होते हैं डिस्ट्रस्ट के? व्हाट आर द रीजंस या कॉजेस? फर्स्ट, different kind of statistics are obtained in respect of a given problem, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के मेथड हैं। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड टू मैच द प्री डिटरमिन्ड कंक्लूजन। स्टैटिस्टिक्स के द्वारा आपने जो प्री डिटरमिन्ड कंक्लूजन लिए हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए लोग बाग कहते हैं कि डिस्ट्रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर एज टू कंफ्यूज द रीडर, कि ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज कर देती है। एंड लास्ट, व्हेन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए पार्शियल मैनर द रिजल्ट आर जनरली रॉन्ग। यानी हमने सैंपल मेथड को यूज किया है और उससे यदि हमने पूरे यूनिवर्स का कंक्लूजन किया है तो उस स्थिति में भी रिजल्ट रॉन्ग होने की स्थिति रहती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस और I will take test in next class.